Hello everyone. In this video, we will continue further the topic methods of capital budgeting, and here we will understand accounting of average rate of return method. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy of Commerce, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's begin with the capital budgeting methods. There are many methods of evaluating profitability of capital investment proposals. And these methods can be categorized in two categories: traditional methods and time adjusted method or discounted method. In the traditional methods, the methods are payback period method or payout or payoff method, improvement of traditional approach to payback period method, and rate of return method or accounting method. In the time adjusted methods, the methods are net present value method, internal rate of return method, profitability index method, and terminal value method or modified IRR. In the earlier videos of capital budgeting, we have discussed payback period method and improvement of traditional approach to payback period method. So if you're new to the channel and you have not seen the earlier videos of capital budgeting, I will provide the link in the description box. You can watch these videos by clicking on that link. In this video, we will understand rate of return method or accounting method. So let's get into it. Rate of return method. What is rate of return method? This method takes into account the earnings expected from the investment over their whole life. It is known as accounting rate of return. The accounting concept of profit, that is the net profit after tax and depreciation, is used rather than cash inflows. रेट ऑफ रिटर्न मेथड एक इन्वेस्टमेंट जो भी अर्निंग जनरेट करती है होल लाइफ पीरियड में, उन सभी अर्निंग्स को इस मेथड में कंसीडर किया जाता है. इस मेथड को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज इस मेथड में अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट को यूज किया जाता है, कैश इनफ्लोज को कंसीडर नहीं किया जाता. व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट? Accounting concept of profit means the net profit after tax and after depreciation. Means यहाँ पर जो profits यूज किए जाएंगे वह after tax and after depreciation यूज किए जाएंगे. कैश इनफ्लोज का यूज इस मेथड में नहीं किया जाता. जैसे कि हमने अर्लियर मेथड्स किए, पे बैक मेथड और इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड, उसमें हम कैश इनफ्लोज का यूज करते थे. बट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स का यूज किया जाता है, इसलिए इस मेथड को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, various projects are ranked in order of the rate of earnings or rate of return. The project with higher rate of return is selected as compared to the one with lower rate of return. इस मेथड में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग की जाती है, और रैंकिंग किस तरह से की जाती है? इन द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ अर्निंग्स. जो भी प्रोजेक्ट्स जिनकी रैंकिंग की जानी है उनको रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे रैंक किया जाएगा. जो प्रोजेक्ट हायर रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहा है उसको हायर रैंक असाइन किया जाएगा, और जो प्रोजेक्ट लोअर रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहा है उसको लोअर रैंक असाइन किया जाता है. This method can also be used to make decision as to accepting or rejecting a proposal. The expected return is determined, and the project which has a higher rate of return than the minimum rate specified by the firm, called the cutoff rate, is accepted, and the one which gives a lower expected rate of return than the minimum rate is rejected. इस मेथड के द्वारा प्रपोजल्स के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का डिसीजन भी लिया जा सकता है. यह डिसीजन कैसे लिया जाएगा? सबसे पहले जो प्रोजेक्ट्स कंसीडर किए गए हैं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए, जिसके बारे में डिसीजन लेना है, उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न डिटरमाइन की जाएगी, और फिर फर्म के द्वारा एक मिनिमम रेट स्पेसिफाई की जाती है जिसको कट ऑफ रेट भी कहते हैं. देन फर्म डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न को कंपेयर करती है इस मिनिमम स्पेसिफाइड रेट से और या फिर कट ऑफ रेट से, और जो प्रोजेक्ट्स मिनिमम रेट से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, जिनका एक्सपेक्टेड रिटर्न मिनिमम या कट ऑफ रेट से ज़्यादा है, उन प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और जिन प्रोजेक्ट्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न कट ऑफ रेट से कम है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है.
तो इस तरह से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का डिसीजन लिया जाता है. Here we will understand what are the different ways and types of rate of return method. So rate of return method can be used in several ways like average rate of return method, rate per unit of investment method, return on average investment method, and average return on average investment method. In the further slides, we will discuss each one of these methods in detail. First method is average rate of return method. Under this method, average profit after tax and depreciation is calculated and then it is divided by the total capital outlay or total investment in the project. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जैसे कि इस मेथड के नेम से ही क्लियर है, इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और आफ्टर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर है एवरेज रेट. तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स लिए जाएंगे वह एवरेज प्रॉफिट्स लिए जाएंगे आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाते हैं और फिर उनको डिवाइड किया जाता है टोटल कैपिटल आउटले से. जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट की गई है दैट इज कॉल्ड टोटल कैपिटल आउटले, उससे डिवाइड किया जाता है. So in other words, it establishes the relationship between average annual profits to total investment. तो यह मेथड एवरेज एनुअल प्रॉफिट और टोटल इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है. What is the formula for calculating average rate of return? The formula for calculating average rate of return is total profit after depreciation and taxes divided by net investment in the project into number of years of profit into 100. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट्स का यूज करेंगे. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, बिकॉज यहाँ पर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स यूज किए जाते हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. इफ यू विल सी हियर, टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज एनुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स. तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में इसको कंबाइन कर दिया गया. या तो हम यहाँ पर सीधा एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स यूज कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला में हो सकता है टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट इनटू 100. So that is the formula for average rate of return. Now what is the total profit? अब total profit कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? हो सकता है क्वेश्चन में डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स के फिगर्स अलग अलग गिवन है तब हम उनको टोटल कर देंगे, या फिर कैश इनफ्लोज गिवन हो सकती हैं. तो अगर कैश इनफ्लोज गिवन है तो हमें टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस कंप्यूट करने हैं. तो उस केस में कैश इनफ्लो में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से टैक्स माइनस करेंगे. टैक्स डायरेक्टली कैश इनफ्लो पर कैलकुलेट नहीं करना. लाइक 40% रेट ऑफ टैक्स गिवन है तो डायरेक्ट कैश इनफ्लो पर डायरेक्टली कंप्यूट नहीं होगा, बिकॉज टैक्स कंप्यूट होता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इनफ्लो में से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स होंगे उस पर टैक्स कंप्यूट किया जाएगा और टैक्स को डिडक्ट किया जाएगा कैश इनफ्लो में से और हमारे पास आएंगे टोटल प्रॉफिट्स. देन एवरेज एनुअल प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स वह नंबर ऑफ ईयर्स जिस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है. तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स फॉर्मूला कैन बी एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इनटू 100 और दिस फॉर्मूला एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली टोटल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज कीजिए और उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट से, या फिर एवरेज एनुअल प्रॉफिट पहले कंप्यूट करो, देन एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इनटू 100. So both the formulas can be used. Both are same. So let's understand it with the help of an example. A project requires an investment of rupees 5 lakh and it has a scrap value of rupees 20,000 after 5 years. It is expected to yield profits after depreciation and taxes during the 5 years amounted to rupees 40,000 in the first year, 60,000 in second year, 70,000 in third year, 50,000 in fourth year and rupees 20,000 in fifth year. यह गिवन है प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस. यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस दे दिए.
लेकिन हो सकता है कैश इनफ्लोज गिवन हो। अगर कैश इनफ्लोज गिवन होंगी तो कैसे कंप्यूट करेंगे, पहले कैश इनफ्लोज में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे और टैक्स को माइनस। यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज गिवन हियर, हमें गिवन है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, उसकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, साल्वेज वैल्यू। लाइक हमने कोई मशीन खरीदी 5 लाख की और 5 इयर्स तक उसको यूज किया, सो आफ्टर 5 इयर्स जो उसकी साल्वेज वैल्यू होगी, जिसको हम उस असेट को सेल करके मनी रियलाइज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द साल्वेज वैल्यू। सो वह वैल्यू है 20,000। जो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की एट द टर्मिनेशन, जब उसका टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, जो उसकी वैल्यू बची होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो यह 20,000 है। और टोटल प्रॉफिट्स गिवन है डिफरेंट ईयर के, सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे कंप्यूट करेंगे। First of all, we will compute average profit because the formula is average annual profit divided by net investment in the project. तो total profit compute करेंगे पहले 40,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में है 60,000, थर्ड ईयर में 70,000, फोर्थ में 50,000 प्लस फिफ्थ ईयर में 20,000। तो टोटल प्रॉफिट है ₹2,40,000। अब एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट है 2,40,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितने आए, ₹48,000। नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट कितने हैं, 5 लाख की हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू गिवन है। तो अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन है, देन यू विल डिडक्ट दैट स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। 5 लाख माइनस 20,000 स्क्रैप वैल्यू, तो यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट कितने आई, ₹4,80,000। Now we will compute average rate of return. Formula is average annual profit divided by net investment in the project into 100. So we'll put the figures in the formula. 48,000 is the average annual profit divided by net investment, that is 4,80,000 into 100. So 10% is the average rate of return here. This is how we will compute average rate of return on the investment. Next method is return per unit of investment method. This method is small variation of the average rate of return method. In this method, the total profit after tax and depreciation is divided by the total investment. रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इस मेथड के नेम से ही क्लियर है, ये मेथड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से डिफरेंट है। कैसे, बिकॉज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट लिए थे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करने के लिए एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट लिया था। अब इस मेथड में नेम में क्या है, रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एवरेज नहीं है, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट्स लिए जाएंगे, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, उसको डिवाइड किया जाएगा किससे, नेट इन्वेस्टमेंट से। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू total profit after depreciation and taxes divided by net investment in the project into 100. So if we'll continue the previous example में हमारे total profits कितने थे, 2,40,000. 2,40,000 was the total profit divided by net investment in the project. Net investment in the project कितनी थी, the net investment 5 lakh minus 20,000 scrap value, that is 4,80,000. नेट इन्वेस्टमेंट है 4,80,000 इंटू 100। तो यहाँ पर रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आई, 50%। तो दिस बेसिकली इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन टोटलिटी पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट पर हम इन टोटलिटी जो रेट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। Next method is return on average investment method. In this method, the return on average investment is calculated. Using of average investment for the purpose of return on investment is preferred because the original investment is recovered over the life of the asset on account of depreciation charges. Yes, इस method में
एवरेज इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कंप्यूट की जाती है। इसके नेम से ही क्लियर है, रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। प्रीवियस मेथड जो हमने 2 किए हैं, फर्स्ट में था एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि हमने एवरेज प्रॉफिट ऑन नेट इन्वेस्टमेंट लिया। सेकेंड में रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें टोटल प्रॉफिट ओवर नेट इन्वेस्टमेंट लिया। इसमें है रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मीन्स हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंसीडर करनी है। तो फॉर दिस पर्पस return on investment is preferred because the original investment is recovered over the life of the asset on account of depreciation charges। यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट को क्यों प्रेफर किया जा रहा है? बिकॉज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है लाइफ ऑफ असेट पे। जो हमारी असेट हम यूज करें उसके लाइफ टाइम में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी रिकवर हो जाती है। जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो रिकवर हो जाती है ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस। So what is the formula of computing return on average investment? That is total profit after depreciation and taxes divided by average investment into 100। इस मेथड में जो भी 4 मेथड्स हम फर्दर करेंगे उन सभी में आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस ही प्रॉफिट्स लेने हैं, बिकॉज यह अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट यूज करता है। तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट विल बी कंप्यूटेड, कैसे कंप्यूट करेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। एंड इफ इन द क्वेश्चन salvage value is given, initial investment is given and net working capital is also given। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट की साल्वेज वैल्यू कितनी है, तो साथ में कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉय की। तो उस केस में एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कंप्यूट की जाएगी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, बाद में ऐड की जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। What is given in the question? A project requires an investment of 5 lakh, scrap value of 20,000 after 5 years. It is expected to yield profit after depreciation and taxes during the 5 years amounting to 40,000, 60,000, 70,000, 50,000 and 20,000। Calculate the return on average investment। हमें return on average investment compute करनी है। रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कंप्यूट की जाएगी? टोटल प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रॉफिट पहले कंप्यूट करने हैं। टोटल प्रॉफिट हमें डिफरेंट ईयर्स के गिवन है, डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स को अगर हम ऐड करेंगे तब हमारे पास इन टोटल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। सो फर्स्ट ईयर के 40,000, सेकेंड में 60, थर्ड में 70,000, फोर्थ में 50,000 एंड फिफ्थ में है 20,000। सो टोटल प्रॉफिट हुए 2,40,000। नाउ वी विल कंप्यूट एवरेज इन्वेस्टमेंट, लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए पहले हम नेट इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करेंगे। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहले हमने 5 लाख इन्वेस्टमेंट की है, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से हम क्या माइनस करेंगे? स्क्रैप वैल्यू 20,000। 5 लाख माइनस 20,000, तो यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट आई 4,80,000। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करने का फॉर्मूला क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। सो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4,80,000, उसको डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास अमाउंट आई 2,40,000। रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला इज total profit after depreciation and taxes divided by average investment into 100। So let's put the values in the formula। total profit after depreciation tax कितना है? 2,40,000 divided by average investment, that is also 2,40,000 into 100। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है? 100%। दिस इज हाउ वी विल कंप्यूट रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। Next method is average return on average investment method. This is the most appropriate method of rate of return on investment. Under this method, average profit after depreciation and tax is divided by average amount of investment। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है रेट ऑफ रिटर्न मेथड का, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है ये, बिकॉज इस मेथड में हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस को डिवाइड करते हैं एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। So how we will compute average return on average investment? That is average annual profit after depreciation and taxes divided by average investment in the project into 100।
So let's understand it with the help of an example. A project requires an investment of rupees 5 lakh and has a scrap value of rupees 20,000 after 5 years. It is expected to yield profits after depreciation and taxes during the 5 years amount to rupees 40,000, 60,000, 70,000, 50,000 and rupees 20,000. Calculate the average rate of return on average investment. इस मेथड के नेम से ही क्लियर है, एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मींस हम जो प्रॉफिट्स लेंगे वो भी एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स लेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट भी एवरेज। तो यहाँ पर यह रेशियो है एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स का ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो हाउ वी विल कंप्यूट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्यूट द एवरेज प्रॉफिट। कैसे कंप्यूट करेंगे, 5 इयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करके उसके टोटल को डिवाइड करेंगे 5 से, बिकॉज 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है। तो 40,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 divided by 5. So average profit is 48,000. Net investment in the project is 5 lakh initial investment minus 20,000 scrap value. कितनी आई इन्वेस्टमेंट 4,80,000. एवरेज इन्वेस्टमेंट कितने ही 4,80,000 divided by 2 is equal to 2,40,000. Now we will put the values in the formula. Formula क्या है, average annual profit divided by average investment in the project. Average annual profit है 4,48,000 divided by average investment. Average investment है 2,40,000 into 100. That is 20%. 20% is the average return on average investment. This is how we will compute average return on average investment method, and this is the most popular type of rate of return method or the accounting method, and this is mostly used in the calculations. Here we will understand advantages of rate of return method. As we have discussed different types of rate of return method, so there are some advantages. What are those advantages? It is very simple to understand and easy to operate. यह मेथड बहुत सिंपल है समझना और इसमें जो कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशंस हैं, वो बहुत इजीली परफॉर्म की जा सकती हैं. It uses the entire earnings of the project in calculating rate of return and only the earnings up to the payback period, and hence gives a better view of profitability as compared to payback period method. यह मेथड किसी भी प्रोजेक्ट की सारी अर्निंग्स को कंप्यूटेशन के लिए यूज करता है, ना कि वह अर्निंग जो कि पे बैक पीरियड तक की अर्निंग्स है. जैसे कि हमने पे बैक पीरियड मेथड में किया. पे बैक पीरियड मेथड की एक लिमिटेशन है कि उसमें सिर्फ वही अर्निंग्स कंसीडर की जाती हैं जहां तक पे बैक आ जाता है. मींस पे बैक पीरियड तक की अर्निंग्स को कंसीडर किया जाता है, यूज किया जाता है. उसके बाद की अर्निंग्स को कंसीडर नहीं किया जाता किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए. बट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में एक किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की सारी अर्निंग्स को कंसीडर किया जाता है. सो यहाँ पे यह पे बैक मेथड की ड्रॉबैक को रिमूव करता है. As this method is based upon accounting concept of profit, it can be readily calculated from the financial data. यह मेथड अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट पर बेस्ड है और यह इजीली रेडली फाइनेंशियल डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है उससे कैलकुलेट किया जा सकता है. Although rate of return method offers some advantages, still there are some disadvantages also. What are those? This method also, like payback period method, ignores the time value of money. Like we have discussed in the drawbacks and limitations of payback period method, कि payback period method में time value of money को consider नहीं किया जाता. So this method also ignores the time value of money, as the profits earned at different points of time are given equal weight by averaging the profits. It ignores the fact that a rupee earned today is of more value than a rupee earned a year after or so. यह मेथड भी पे बैक पीरियड मेथड की तरह ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, बिकॉज जितनी भी अर्निंग्स पूरे लाइफ टाइम में असेट के प्रोजेक्ट के अर्न की हैं उनको इक्वल वेट्स दिए जाते हैं. यह मेथड इस फैक्ट को इग्नोर करता है कि जो मनी हमने आज अर्न की है उसकी वैल्यू ज़्यादा है इसके बजाय जो मनी हम आफ्टर 1 ईयर अर्न करेंगे.
तो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है. दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड. It does not take into consideration the cash flows which are more important than the accounting profits. यह मेथड कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करता और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, जबकि कैश फ्लोज अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है. It ignores the period in which the profits are earned, as a 20% rate of return in 2 years may be better than 18% rate of return for 12 years. This is not proper because longer the term of the project, greater is the risk involved. यह मेथड किसी भी प्रोजेक्ट के द्वारा जो प्रॉफिट्स अर्न किए जाते हैं उसमें टाइम पीरियड को इग्नोर करता है. जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, उसने 2 years में 20% रिटर्न अर्न किया, रेट ऑफ रिटर्न 20% है, उसको बेटर कंसीडर किया जाएगा दूसरे प्रोजेक्ट से जिसने 12 इयर्स में 18% रिटर्न अर्न किया. लेकिन यह लॉजिक सही नहीं है, बिकॉज जितना ज़्यादा एक प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड लंबा होता है उतना ही ज़्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है. And another disadvantage of this method is this method cannot be applied to a situation where investment in a project is to be made in parts. तो यह मेथड ऐसे सिचुएशन में भी अप्लाई नहीं किया जा सकता जहां पर किसी भी प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है पार्ट्स में या इंस्टॉलमेंट्स में की जा रही है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में की जा रही है, तो वहां पर यह मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता. तो in spite of these advantages and these disadvantages, this method continues to be used as a performance evaluation and control measure in practice. But its use in investment decision criterion is sometimes undesirable due to its disadvantages. So I hope you must have understood this method very well. In the next video, we will understand the time adjusted method. We will start the time adjusted method and we will discuss there the net present value method. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.